ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں، تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ ایران جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے راضی تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایران کا انکشاف۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ایران پر ہو رہے لگاتار حملوں نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ اس درمیان میڈیائی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ جوہری پروگرام بند کرنے پر راضی تھا، لیکن بات چیت کے درمیان ہی حملہ کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ سے پہلے ایران نے امریکہ سے اپنے سبھی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ ایران نے کہا تھا کہ جوہری پروگرام بند کرنے کے بدلے امریکہ اسے متبادل تجویز مہیا کرائے گا۔ چوتھے دور کی بات چیت ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اسکائی نیوز عربیہ کو ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے اس پیشکش سے متعلق جانکاری دی۔ ایران کا امریکہ کے میزائل ٹینکر پر حملہ، بحری جہاز پر حملے کا جواب۔ مغربی ایشیا میں جنگ شدید ہوتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں بحر ہند میں ایران کے بحری جنگی جہاز پر امریکہ نے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا۔ اب اطلاعات ہیں کہ ایران نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیج میں ایک امریکی آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فارس کی خلیج میں موجود ایک امریکی ٹینکر پر میزائل حملہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز سے زبردست آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے گئے، تاہم جانی نقصان کے بارے میں ابھی کوئی واضح معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ان کے جنگی جہاز پر کیے گئے امریکی حملے کے جوابی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے۔ اگرچہ ایران کی حکومت نے ابھی تک اس واقعے پر باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح ہے کہ وشاکھاپٹنم سے ایران واپس جا رہے ایرانی جنگی جہاز IRIS ڈینا پر ایک امریکی آبدوز نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے وقت جہاز پر تقریباً 180 عملے کے افراد موجود تھے۔ اس حملے میں 87 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کچھ کو سری لنکا کی فورسز نے بچا لیا۔ چند افراد ابھی تک لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ امریکہ کے اس حملے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی پس منظر میں امریکی ٹینکر پر ہونے والا حالیہ حملہ اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی اجازت نہیں، اسرائیل نے عائد کی پابندی۔ مسجد اقصی میں آج جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکے گی۔ میڈیائی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس نے جمعرات کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعے کے روز مسجد اقصی میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت اور اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ اس بندش سے ہزاروں مسلمان متاثر ہوں گے جو جمعے کے دن مسجد کے احاطے میں نماز ادا کرنے آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نماز جمعہ میں بڑی تعداد میں مسلمان یہاں آتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دیگر مذاہب کے مقامات مقدسہ میں بھی لوگوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ ہفتے کی صبح مسجد اقصی کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا اور وہاں موجود نمازیوں کو زبردستی باہر نکال دیا تھا، جبکہ عشاء اور نماز تراویح کی ادائیگی پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس اقدام کی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے اور اسے مذہبی آزادی پر خدغن قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی جنگی حکمت عملی، لاکھوں کے ڈرون سے کروڑوں کے میزائل کا مقابلہ، کم خرچ میں دشمنوں کو بھاری نقصان۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران ایک نئی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ وہ خود زیادہ خرچ کے بغیر اپنے مخالفین کو بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کے وسائل اور پیسے ختم کر کے انہیں تھکا دینا ہی ایٹریشن وار کی بنیادی حکمت عملی ہے۔ دراصل ایران امریکہ اور اسرائیل کے جنگی اخراجات کو کس طرح بڑھا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار موجود ہے، لیکن ایران ان کا مقابلہ سستے ڈرون سے کر رہا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں شاہد 136 ون وے اٹیک ڈرون ہیں۔ یہ چھوٹے کروز میزائلوں کی طرح کام کرتے ہیں اور ہدف تک پہنچتے ہی پھٹ جاتے ہیں، اس لیے انہیں خود کش ڈرون بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ڈرون بنانے کی لاگت تقریباً $20,000 یعنی تقریباً 16 لاکھ بھارتی روپے میں ہے، لیکن ان ڈرونز کو روکنے کے لیے خلیجی ممالک اور امریکہ جو دفاعی میزائل استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمت کروڑوں روپے تک پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے آئرن ڈوم دفاعی نظام میں استعمال ہونے والے ایک میزائل کی قیمت تقریباً 35 سے 45 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ اسی طرح طیاروں سے داغے جانے والے سائڈون ڈنڈر میزائل اس سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ امریکہ کے پیٹریاٹ میزائل سسٹم میں استعمال ہونے والے ایک انٹرسپٹر میزائل کی قیمت 30 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے، یعنی تقریباً 16 لاکھ روپے کے ڈرون کو مار گرانے کے لیے 30 کروڑ روپے کا میزائل استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہی قیمت کا بڑا فرق اب مغربی ممالک کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ طویل عرصے تک جاری رہی تو مہنگے میزائلوں کے ذخائر تیزی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ بعض داخلی اندازوں کے مطابق خلیجی ممالک میں پہلے ہی میزائلوں کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ایران کم لاگت پر ہزاروں ڈرون تیار کر کے حملے جاری رکھتا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے انہیں روکنا معاشی طور پر بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آخرکار ہتھیاروں کی کمی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے جنگ روکنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ہندوستان 30 دن تک خرید سکے گا روسی خام تیل، ایران جنگ کے بیچ امریکہ نے دی رعایت۔ ایران جنگ کی وجہ سے عالمی تیل بازار میں پیدا ہونے والی بے یقینی کے درمیان امریکہ نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے روس کو عارضی رعایت دے دی ہے۔ اس رعایت کے تحت روس آئندہ 30 دن تک ہندوستان کو خام تیل فروخت کر سکے گا۔ اس فیصلے سے سمندر میں رکے روسی تیل بردار جہازوں کے لیے راستہ کھلنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی حکومت نے عالمی تیل بازار پر بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے مقصد سے یہ عارضی اجازت دی ہے۔ کئی مہینوں سے روس کے کئی تیل ٹینکر سمندر میں کھڑے تھے کیونکہ خریدار اور ادائیگی کے نظام سے متعلق غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ان کی ترسیل رک گئی تھی۔
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई के इंतकाल पर भारत का इजहार ताज़ियत, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने जुमेरात को नई दिल्ली में ईरान के सफ़ीर से मुलाकात करते हुए ताज़ियती रजिस्टर पर दस्तखत किए। आयतुल्लाह खामनाई का इंतकाल इतवार के रोज़ तेहरान में अमेरिका और इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाई के चंद घंटों बाद हुआ था। इसी दौरान एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की जानिब से ताज़ियत का इजहार ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने ऐलान किया है कि वो अबनाए हरमस को अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन के जहाज़ों के अलावा दिगर तमाम ममालिक के लिए खुला रखेगा। ईरान के पासदारान इनक़लाब ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका, इसराइल या इनके इत्तेहादियों के जहाज़ इस आबी गुजरगाह में दाखिल हुए तो इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत हमेशा ऐसे तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकिरात और सिफारतकारी की हिमायत करता रहा है। याद रहे कि माजी में भारत अपनी तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 13% हिस्सा ईरान से हासिल करता था। तहम 2018 में अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियों में नुमाया कमी आ गई। इसके साथ ही गुज़िश्ता वर्षों में भारत और इसराइल के दरमियान स्ट्रैटेजिक, मुआशी और दिफाई ताउन में भी तेज़ी आई है, जिसकी वजह से नई दिल्ली की सिफारती पॉलिसी में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिशें मज़ीद अहम हो गई हैं। कई इलाकों में 36 घंटों तक पानी की सरबराही में खलल। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने जुमेरात को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुतल्ला किया है कि 7 मार्च को सुबह 8 बजे से 8 मार्च को 8 बजे रात तक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सरबराही मुतासर रहेगी। इनमें मनीकुंडा, कोकापेट, नारसंगी, मंचरेलवा और दूसरे इलाके शामिल हैं। शेखपेट ज़ख़ीरे आपको पानी की सरबराही मुकम्मल बंद रहेगी और बोजागुट्टा इलाके में कम प्रेशर के साथ इस मुद्दत के दौरान पानी सरबराह किया जाएगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि शहर हैदराबाद को पीने का पानी सरबराह करने वाले पेद्दापुर पंप के मांजरा मरहला 3 के पंप हाउस में मरम्मत के कामों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। ये काम 7 मार्च को सुबह 8 बजे से 8 मार्च को 8 बजे रात तक अंजाम दिए जाएंगे। इन 36 घंटों के दौरान कई मुकामात पर पानी की सरबराही मुतासर रहेगी। पुराने शहर को नया तोहफा, बमरुकनुद्दौला झील का आज इफ्तिताह। पुराने शहर के तारीख़ी बमरुकनुद्दौला तालाब की अज़मत रफ्ता बहाल करने का काम मुकम्मल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 6 मार्च को इसका इफ्तिताह करेंगे, जबकि चंद दिन बाद कोकटपल्ली नाला चेरू को भी आवाम के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से शहर के तारीख़ी और अहम तालाबों की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। हैदरा की जानिब से पहले मरहले में जिन 6 तालाबों की बहाली का मनसूबा बनाया गया था, इनमें अंबरपेट में वाक़ बदकम्मा कोटा को गुज़िश्ता साल सितंबर में दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया था, जबकि मज़ीद 3 तालाबों पर काम जारी है। इसके अलावा दूसरे मरहले में 14 तालाबों की तरक्की का मंसूबा भी शुरू हो गया है। पुराने शहर का तारीख़ी बमरुकनुद्दौला तालाब निज़ाम दौर की एक अहम यादगार है, जिसे हैदरा ने जदीद सहूलियात के साथ दोबारा बहाल किया है। तालाब के पिछते को मजबूत बनाकर वॉकिंग ट्रैक तैयार किया गया है और वहाँ ओपन जिम भी कायम किया गया है, ताकि हर उम्र के अफराद सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। बुजुर्गों के लिए गेज़बोस और मेडिसिनल प्लांट्स के साथ सायादार दरख्त भी लगाए गए हैं। तालाब की तरफ CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी निगरानी हैदरा हेडक्वार्टर से की जाएगी। तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में रियल इस्टेट सरगर्मियाँ ठप। रियल इस्टेट सरगर्मियाँ तेलंगाना बिलखुसूस रियासत के दारुल हुकूमत में ठप होती जा रही है और इन सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए सरकारी सतह पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में रियल इस्टेट शोबे में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। शहर हैदराबाद में रिहायशी जायदादों के अलावा तिजारती अगराज के लिए खरीदी जाने वाली जायदादों की खरीद और फरोख्त में भी नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। रियल इस्टेट ताजरीन का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से पॉलिसी की तैयारी और इनसे दस्तबरदारी के नतीजे में सरमायाकारों को हुकूमत के मंसूबों पर एतमाद बाकी नहीं रहा। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में रियल इस्टेट सरगर्मियों के ठप होने की वजूहात में रियासती हुकूमत की जानिब से हैदरा के क़याम के जरिए प्राइवेट जायदादों को निशाना बनाने के अलावा मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर नदी के दोनों जानिब तास पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ रियल इस्टेट शोबे को कमज़ोर कर रही हैं। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए गवर्नर हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के नए गवर्नर मुकर्रर किए गए हैं। इस ताल्लुक से सदर जमहूरिया ने जुमेरात को अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर जयचंद्र वर्मा को गवर्नर महाराष्ट्र मुकर्रर किया गया है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले सीनियर बीजेपी लीडर शिव प्रताप शुक्ला 1 अप्रैल 1952 को पैदा हुए। वो साबिक में 2017 से 2019 तक मोदी हुकूमत में मरकजी मुमलिकती वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक में उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भी नुमाइंदगी की थी। शमशाबाद एयरपोर्ट से 31 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिरों में तशवीश। ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान जारी शदीद फौजी तसादुम और मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से चलने वाली फ़िज़ाई सर्विसेज बुरी तरह मुतासर हुई हैं। जंगी हालात और सिक्योरिटी खदशात की वजह से खलीजी ममालिक से आने वाली और वहाँ से जाने वाली मजमूई तौर पर 31 फ़्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। इस मनसूख शुदा परवाज़ों में 16 ऐसी हैं जो खलीजी ममालिक से हैदराबाद पहुँचने वाली थी, जबकि 15 परवाज़ें यहाँ से कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और क़तर के लिए रवाना होनी
थी। गुज़िश्ता रोज़ भी 33 परवाज़ें मुतासर हुई थीं, क्योंकि फ़िज़ाई कंपनियां जंगज़दा फ़िज़ाई हुदूद में परवाज़ करना ख़तरनाक समझ रही है। ताहम एक मुस्बित पहलू यह है कि 5 दिन के तवील वक्फे के बाद कुछ खुसूसी परवाज़ें जैसे जिद्दा और अबू ज़हबी से इंडिगो एयरलाइंस हैदराबाद पहुंची हैं, ताकि वहां फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों को बहिफाजत वतन वापस लाया जा सके। फ़िज़ाई कंपनियां सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और मुसाफिरों को किसी भी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए परवाज़ों की मनसूखी की इत्तला पेशगी फराहम की जा रही है। राज्यसभा के लिए अभिषेक सांघवी और नरेंद्र रेड्डी के पर्चा नामजदगी दाखिल। तेलंगाना में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के तौर पर अभिषेक मनु सांघवी और वी नरेंद्र रेड्डी ने कल पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और काउंसिल की मौजूदगी में दोनों ने पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले की। दोनों उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगी के 3 अलहदा सेट दाखिल किए गए। वाज़ेह है कि अभिषेक मनु सांघवी और KR सुरेश रेड्डी की मियाद आइंदा महीने तक हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटों पर इंतखाबी अमल का आगाज़ किया है। मार्च में ही झुलसा देने वाली गर्मी, तेलंगाना के 25 अजला शदीद गर्मी की लपेट में। रियासत में अप्रैल और मई की आमद से पहले ही गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। कई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद महकमा मौसमियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चहारशंबे के रोज़ रियासत के 25 अजला में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया। हैदराबाद में 36.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जिले खम्मम के सत्तेपल्ली में 37.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। ओहदेदारों के मुताबिक आमतौर पर अप्रैल और मई में गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, ताहम इस साल मार्च में ही सूरज की तपिश में इजाफा हो गया है। खासतौर पर शुमाली और जुनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहने का इम्कान है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अप्रैल और मई में जुनूबी और वस्ता हिंद में हीट वेव और गर्म हवाओं की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों में बारिश मुतवक्को। तेलंगाना में सर्दियों के रुखसत होते ही मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है, लेकिन इसी दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के माहिरीन ने इस महीने की 18 या 19 तारीख के बाद रियासत में एक बार फिर गैर मौसमी बारिश की पेशनगोई की है। माहिरीन का कहना है कि इस बार बारिश की शिद्दत गुज़िश्ता महीने की 23-24 तारीख को हुई बारिश से कहीं ज़्यादा हो सकती है। माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बारिश का सिलसिला शुरू होने तक रियासत भर में धूप की तमाज़त बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक रियासत के कई अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़्यादा कर सकता है। हैदराबाद और मुज़ाफ़ात में दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। हुक्काम ने बढ़ती हुई गर्मी के पेश नज़र आवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। साथ ही किसानों को भी हिदायत दी गई है कि वो आने वाली गैर मुतवक्को और शदीद बारिश के पेश नज़र अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। चौमहल्ला पैलेस में हैदराबाद पुलिस की पुरवखार दावत इफ्तार, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत। हैदराबाद पुलिस की जानिब से हस्ब रिवायत हर साल की तरह इस साल भी तारीख़ी चौमहल्ला पैलेस में एक पुरवखार दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस बावखार तक़रीब में शहर हैदराबाद की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, सियासी क़ायदीन, उलमा इकराम और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चार मीनार के रुकन असम्बली मीर ज़ुल्फ़िकार अली, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद साहब, हज कमेटी के चेयरमैन समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। तक़रीब के दौरान मेहमानों ने एक दूसरे को माह रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद पेश की और इस बाबरकत महीने की अहमियत, फजीलत और बरक़ात पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक सब्र, तक़वा, हमदर्दी और भाईचारे का पैगाम देता है और हमें ज़रूरतमंदों की मदद करने और मुआशरे में मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की तलक़ीन करता है। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी मेहमानों का खैर मक़दम किया और कहा कि इस तरह की तक़रीबात मुआशरे में अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देने और पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुक़ात क़ायम करने में अहम किरदार अदा करती है। इफ्तार के वक्त तमाम मेहमानों ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया और मुल्क और मिल्लत की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। तक़रीब खुशगवार और रूहानी माहौल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें शुरका ने इस तरह के प्रोग्रामों को समाजी हम आहंगी के लिए निहायत मुफीद करार दिया। सूर्यापेट की ईदगाह की तौहीन के खिलाफ मुसलमानों में बेचैनी। मजलिस बचाओ तहरीक ने सूर्यापेट जिले के बाशा नायक टांडा में वाक़ ईदगाह की बेहरमती के वाक़े पर एहतजाज करते हुए फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों की मजम्मत की। ईदगाह के हुदूद में मुर्दा खिंजीर पाया गया, जिसके बाद मुकामी मुसलमानों ने सूर्यापेट रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इल्ज़ाम किया है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें रमज़ानुल मुबारक के दौरान फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ईदगाह जैसे
मुक़द्दस मुकाम पर मुर्दा खिंजीर का पाया जाना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये मनसूबाबंद तरीके से फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की साजिश है। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की गैर जानिबदार और जामे तहक़ीक़ात मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करते हुए साजिश में मुलव्विस खातियों की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाए। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज और मुकामी इंटेलिजेंस की मदद से खातियों की शनाख्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अमजदुल्ला खान ने कहा कि रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद से फिरका वाराना नवीयत के वाक़यात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद से फिरका परस्त ताकतों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस तरह के वाक़े से मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और मजहबी मुकामात जैसे मदारिस, मसाजिद और दरगाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत के इक़दाम भी मुसलमानों के खिलाफ है, जिसके नतीजे में मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है। MBD तर्जुमान ने सूर्यापेट वाक़े के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तमाम मजहबी मुकामात के सिक्योरिटी इंतजाम का मुतालबा किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो अमन व अमान बरकरार रखते हुए गैर समाजी अनासिर के इश्तिआल का शिकार ना हों। सोना और चांदी ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड्स कि अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगे जेवरात। अगर आप शादी ब्याह के सीजन के लिए जेवरात खरीदने का सोच रहे हैं तो आज की खबर आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों ने ऐसी छलांग लगाई है कि बड़े बड़े सरमायाकार भी हैरान रह गए। इब्तिदाई कारोबार में ही चांदी की कीमत में इतनी तेजी आई कि ये 8,700 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई, जबकि सोने की कीमतों में भी 1,600 रुपये का ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। इदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो चांदी गुज़िश्ता सेशन में 2,65,560 रुपये फ़ी किलो पर बंद हुई थी, लेकिन आज सुबह ये सीधा 2,69,900 रुपये पर खुली। देखते ही देखते कारोबार के दौरान चांदी 2,74,251 रुपये की सतह तक जा पहुंची। अगरचे बाद में मामूली इस्तेहकाम आया, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन 2,70,012 रुपये के आसपास ट्रेड करती नजर आई, जो कल के मुकाबले में तकरीबन 1.68% की बढ़ती बढ़ोतरी है। सोने का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत जो कल 1,61,525 रुपये था, आज 1,62,750 रुपये पर ओपन हुआ। कुछ ही देर में ये बढ़कर 1,63,142 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। फिलहाल बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1,62,157 रुपये के आसपास बरकरार है। इस अचानक तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी हालात का एक बड़ा जाल है। सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव है। जब भी दुनिया में जंग जैसे हालात बनते हैं तो शेयर बाजार गिरने लगते हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखने के लिए सोना और चांदी खरीदने लगते हैं, क्योंकि इन्हें महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। इसके अलावा आलमी बाजार में डॉलर की कमजोरी भी सोने के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। जब डॉलर कमजोर होता है तो भारत जैसे ममालिक के लिए सोना खरीदना निस्बतन सस्ता हो जाता है, जिससे मांग बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जंग के खदशात की वजह से खाम तेल की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। तेल महंगा होने का सीधा मतलब महंगाई में इजाफा है, और जब भी महंगाई बढ़ती है तो सोने की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। शरद पवार राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब, नामजदगी का अमल घर पर मुकम्मल। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बानी शरद पवार राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इन्हें अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अखाड़े की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया था। 7 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से इंतखाबी मुकाबले की जरूरत नहीं पड़ी और तमाम उम्मीदवारों के बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार हो गई। शरद पवार की सेहत नासाज होने की वजह से वो नामजदगी दाखिल करने के लिए इंतखाबी अफसर के दफ्तर नहीं पहुँच सके। ऐसी सूरत हाल में एक गैर मामूली कदम उठाते हुए इंतखाबी अफसर खुद इनकी रिहाइशगाह पहुँचे और वही नामजदगी से मुताल्लिक़ तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कराई गई। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात की तारीख में यह पहला मौका है जब किसी उम्मीदवार के घर जाकर इंतखाबी अफसर ने नामजदगी का अमल मुकम्मल किया हो। इस मौके पर महाविकास अखाड़े के कई अहम रहनुमा भी मौजूद थे। बाद शरद पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम जारी करते हुए अपने तवील सियासी सफर का जिक्र किया और महाराष्ट्र के अवाम का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान का जंगी तैयारा सखवी 30 लापता। हिंदुस्तान का सखवी 30 MKI जंगी तैयारा लापता हो गया है। ये वाक़या कार्बी अंगलुंग ज़िले में पेश आया। मरकज़ी वज़ारत दिफ़ा के ज़राए के मुताबिक इस जंगी तैयारे का रडार से राब्ता मुनक़ता हो गया था। तैयारे का सुराख लगाने के लिए फ़िज़ाइया की एक टीम को तलाश के लिए रवाना किया गया है। फ़िज़ाइया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक करते हुए कहा कि फ़िज़ाइया का सखवी 30 MKI तैयारा लापता हो गया है। ये जंगी तैयारा आसाम के जवाहरहाट से रवाना हुआ था। रात 7:42 पर इससे आखिरी राब्ता हुआ था। हमने तलाश की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल की। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा के लिए अपनी नामजदगी दाखिल कर दी। उन्होंने असेंबली के सेक्रेटरी खेती सिंह के दफ्तर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में नामजदगी के कागजात जमा किए। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि उन्होंने राज्यसभा के लिए नामजदगी दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की सियासत में आइंदा दिनों बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे तवील मुद्दत तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले लीडर के तौर पर रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ख्वाहिश रही है कि वो बिहार असेंबली और काउंसिल के साथ साथ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के रुकन बने और अब इन्हें राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान अवाम ने इन पर जो एतमाद और भरोसा किया, इसी की बुनियाद पर वो बिहार की खिदमत करते रहे और रियासत को तरक्की की नई सिमत देने की कोशिश की। उन्होंने अवाम की हिमायत पर एक बार फिर शुक्रिया अदा किया।
अमेरिका ने कुवैत में अपने सिफारत खाने के तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए। अमेरिकी शहरियों को कुवैत छोड़ देने अमेरिका का मशवरा। अमेरिकी महकमा खारजा ने ऐलान किया है कि कुवैत में अपने सिफारत खाने के तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और ये तस्दीक की कि हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। कुवैत न्यूज़ एजेंसी ने अमेरिकी महकमा खारजा के बयान के हवाले से आज रिपोर्ट दी है कि अगरचे अमेरिकी हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है, तहम बैरूनी मुल्क अमेरिकी शहरियों की हिफाजत हमारी अव्वलिन तरजीह है। महकमा खारजा ने यह भी कहा है कि जो अमेरिकी शहरी इस वक्त कुवैत में हैं, अगर वो महफूज तरीके से मुल्क छोड़ सकते हैं तो तिजारती या दिगर दस्याब ज़राए इस्तेमाल करते हुए कुवैत छोड़ दें। जिन अमेरिकी शहरियों के लिए रवानगी मुमकिन नहीं है, इन्हें अपने मुकामात रिहाइश में ही महफूज रहने का मशवरा दिया गया है। बहरीन के तेल रिफाइनरी पर ईरान का मिसाइल हमला, खलीज में जंग का दायरा मजीद फैल गया। बहरीन में तेल के अहम रिफाइनरी मरकज पर मिसाइल हमले की इत्तलात सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के नतीजे में बहरीन की बड़ी ऑयल कंपनी बहरीन पेट्रोलियम कंपनी के रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। वीडियोज़ में रिफाइनरी के मुख्तलिफ हिस्सों से शोले और धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक 5 मार्च को होने वाली इस कार्रवाई के दौरान बहरीन के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 75 मिसाइल और 123 ड्रोन रोके गए, ताहम चंद मिसाइल रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके नतीजे में आग लग गई। ये रिफाइनरी बहरीन की मईशत के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है, क्योंकि यहाँ मुल्क के बेशतर खाम तेल को प्रोसेस किया जाता है। इसी जजीरे पर अमेरिकी बहरिया का अहम अड्डा यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट भी कायम है, जो खलीज फारस, बहर अहमर और बहर हिंद में अमेरिकी बहरी कार्रवाइयों की निगरानी करता है। बहरीन का कहना है कि इस तरह के हमले न सिर्फ तवानाई की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं, बल्कि आलमी तेल मंडी पर भी फौरी असर डालते हैं। अगरचे रिफाइनरी को मुमकिन तौर पर मरम्मत के बाद दोबारा फाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे हमले खलीजी खित्ते में तवानाई के मराकज़ की सलामती पर बड़े सवालात खड़े कर रहे हैं। इधर बहरीन हुकाम और अमेरिकी बहरिया की जानिब से सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, जबकि खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।